Very good morning, students. Hope you all are doing well in your home. Students, what we have completed till today, that is of four lessons of language of science, safety practices, non-conventional sources of energy, our environment, entrepreneurship. This all we have completed in chapter 1 and chapter 2. And short stories, we have completed three short stories, that is A Letter to God, Selfish Giant, and Astrologer's Tale. Uh, Now we are moving to a new chapter, that is coming from effective communication, in which we will study that how we will communicate to others, and what is the importance of communication, how effective we can communicate with others, barriers in communication, what barriers comes under the communication, seven C's of communication, which is the most important part of the communication, and process of communication we will study, different communication skills, which is very important. Without this, communication cannot happen, that is listening, speaking, reading and writing. Listening skills we will study that how the process of listening skills goes on, purpose of effective listening, how to improve listening, qualities of good listener, and next is presentation skills. Now let us understand first that what is communication, then only we would be able to understand the communication and its importance. Okay, now let's start. What is communication? Now, uh, you can I think you can see all these things, है ना? Now, first understand what is the definition of communication. Communications means communication verb. First, we must know that how this word has come from, where this word communication has come from. Communication word come from the Latin word that means communicare, which comes under the noun, and commune means verb, which means to share. दोनों का मतलब यही होता है कि हमको शेयर करना, शेयर मतलब बांटना, ठीक है. कम्युनिकेशन इज अ म्यूचुअल प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पीपुल. एक या उससे दो से ज़्यादा व्यक्ति होने पर हम जो अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं. व्हाट वी यूज टू डू एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, वी यूज टू एक्सचेंज आवर आइडियाज, data, knowledge, emotions, views, informations through gestures, voice symbols, signs and expressions, etc. कम्युनिकेशन एक ऐसा म्यूचुअल प्रोसेस है, म्यूचुअल मतलब आपस में, बिटवीन टू और मोर, दो या उससे ज़्यादा व्यक्ति जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को अपन एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब व्यूज़, आइडियाज़, एक्सप्रेशंस, थॉट्स अपन शेयर करते हैं, व्यूज़, इंफॉर्मेशन है थ्रू जेस्चर, अपने जैसे मैं अभी आपका हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो कम्स द इंफॉर्मेशन ऑफ जेस्चर, थ्रू जेस्चर. वॉइस सिम्बॉल्स, अपने बात करने के तरीके से, वॉइस कैसे आपका लो वॉइस है कि हाई वॉइस है, उससे भी आप कम्युनिकेट करते हो. सिम्बॉल्स से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सिम्बॉल आप बोलने से ट्रैफिक लाइट इज ऑल्सो एन सिम्बॉल, कि आपको सिम्बॉल्स में आपको, जैसे आपको हाईवे आप पे आप जाएंगे तो आपको उसमें एक स्ट्रेट लाइन और ऐसे हाफ सर्कल उसमें दिखेगा. इट मीन्स दैट समवेयर इज ब्रेकर कमिंग in the path of the road, coming in path of towards where you are going the destination for. ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं. कहीं पर आपको ब्रेकर का साइन दिखेगा, कहीं पर आपको स्कूल का साइन दिखेगा. दैट इंडिकेट्स दैट व्हाट वी आर हैविंग इन द पाथ ऑफ द डेस्टिनेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन. क्या है कम्युनिकेशन इन द लाइफ ब्लड ऑफ सोशल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन द मैसेज कन्वेड by the sender and is understood by the receiver in exactly the same way it is intended as it was intended. इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज तभी होता है, प्रभावी कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब मैसेज
अपन कन्वे करते हैं, सेंड मैसेज कन्वे किया जाता है सेंडर के द्वारा और रिसीवर उसको उसी फॉर्म में समझता है, एग्जैक्टली उसी वे में जिस तरीके से वो भेजना चाहता है। यहाँ पर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन द मैसेज कन्वेड बाय द सेंडर, जब सेंडर के द्वारा जब कोई मैसेज कन्वे किया जाता है किसी रिसीवर को और जिस तरीके से सेंडर अपने मैसेज को भेजना चाहता है उसी तरीके से जब रिसीवर उसको समझ लेता है, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रभावी हो गई है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब बताया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमको ये समझना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या, हमारा क्या, किस उद्देश्य से हम कम्युनिकेशन करते हैं। किसी से भी बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला मोटिव, दूसरा सब्जेक्ट। हमारे पास एक मोटिव होना चाहिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास कोई विषय होना चाहिए किसी से बात करने के लिए। तो हमारे पास किस चीज पे किसी से बात करने के लिए जब हमारे पास विषय रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने उस विषय पर अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस, ये सारे चीज हम व्यक्त करेंगे मतलब शेयर करेंगे किसी दूसरे को। जब हम बताते हैं, कुछ भी बात करते हैं, मतलब दैट मीन्स अंडर, दैट कम्स अंडर द शेयर। ठीक है, तो पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है, किसी से भी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं, किसी एडवाइस के लिए बात करते हैं, कभी हम काउंसलिंग के लिए बात करते हैं, कभी ऑर्डर किस लिए कम्युनिकेशन होता है, परसुएशन होता है, एजुकेशन से संबंधित में तीन चीजें आती हैं। पहला दिया है आपको ए में क्या दिया है आपको, मैनेजमेंट लेवल। जब मैनेजमेंट लेवल के लोग बात करते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन होती है। सेम लेवल पे मतलब कम्युनिकेशन मतलब एम्प्लॉय पर भी होता है। एक लेवल एम्प्लॉय की जो होती है, पूरे एम्प्लॉयज मतलब उनका एक कम्युनिकेशन अलग होगा। ठीक है, पूरे मैनेजमेंट मतलब उनके कम्युनिकेशन का एक अलग होगा। एट द लेवल ऑफ द पब्लिक, एट द लेवल ऑफ द आउटसाइड पब्लिक, जब हम बाहर में किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, फिर क्या आता है, वार्निंग भी देते हैं हम लोग, मोटिवेशन का भी एक कम्युनिकेशन होता है। रेजिंग मोरल, किसी का मोरल बहुत डाउन है, उत्साह किसी के अंदर में बहुत कम है तो उसके उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं, रेजिंग मोरल। फिर एक सजेशन के लिए भी हम देते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। मतलब इस उद्देश्य से हम किसी ना किसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो इन उद्देश्यों का हम हमेशा अपने बात करने के समय अपन यूज करते हैं। तो आप इन 10 पॉइंट्स में, इसमें भी इन 10 पॉइंट्स में जो भी चीजें हम किसी से बात करते हैं, मतलब यह है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा, अवरुद्ध होना, बाधा। कम्युनिकेशन में बात करते समय जब हमें कोई बाधा आती है, बाधा मतलब कहीं पर इंटरप्शन आता है, तो इन चीजों को हम बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद है या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन का मतलब ऐसे तथ्य जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। अपन अफेक्टिंग और इफेक्टिव दोनों अलग अलग चीजें हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली और इफेक्टिव का मतलब होता है जो बाधा उत्पन्न करना का काम करता है कम्युनिकेशन के दौरान में, मतलब प्रभावित करने वाले तथ्य जो हैं कम्युनिकेशन में, हम उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, लेट अस सी। द फैक्टर्स अफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ऐसे फैक्टर जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा किसी के साथ चलता रहता है और जब कोई तथ्य आ करके उसमें जब प्रभाव डालते हैं, कोई रुकावट पैदा करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन में आपकी बैरियर आ गई है, रुकावट आ गई है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन पूरा पूर्ण होता है और पूरा परफेक्ट तब होता है जब रिसीवर मैसेज को समझता है उसी स्पिरिट में जिस स्पिरिट में सेंडर ने उसको समझाया था या उसको बताया गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन हम कंप्लीट नोटिस नहीं कर सकते, डज नॉट टेक प्लेस, नहीं ले सकता, क्योंकि सर्टेन बैरियर्स, कुछ ना कुछ बैरियर जरूर आएगा। अदर फैक्टर्स आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर, और ये जो फैक्टर्स है उसको भी हम कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। प्रैक्टिकली मतलब प्रभावी तौर पे अगर आप देखोगे तो इट हैज़ बीन नोटिस, ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्टेन बैरियर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं
अदर फैक्टर्स और जो अलग तथ्य हैं उनको भी हम बैरियर टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये अलग तथ्य क्या है, अदर फैक्टर्स क्या क्या जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में, वो क्या है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, मतलब गलत मीडियम का चुनाव करना। किसी माध्यम का आपने कोई चुनाव किया, हो सकता है वो गलत हो, तो बैरियर टू कम्युनिकेशन होगा। तो कैसे, किस प्रकार से बैरियर टू कम्युनिकेशन है? द प्रॉपर चॉइस ऑफ मीडियम कैन ऐड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावी। तो इसमें क्या बोला है कि द प्रॉपर चॉइस ऑफ मीडियम, अगर आपने सही मीडियम का अगर आपने चुनाव किया है तो आपका कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो सकता है। वेयर इज, उसके अलावा अगर आपने कोई रॉन्ग चॉइस किया है तो इट कैन ऐड बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब वो कम्युनिकेशन में बैरियर उसमें ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर इफ एन एम्प्लॉय वांट्स टू एक्सप्रेस हिज रिग्रेट टू द सुपरविजन ओवर हिज कंडक्ट, इट इज बेटर टू अडॉप्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन rather than other mediums। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एम्प्लॉय अपना कोई रिग्रेट, अपनी कोई गिल्ट यदि किसी के सामने वो बोलना चाहता है, वो माफी मांगना चाहता है किसी सुपरविजन में, रिग्रेट टू द सुपरविजन ओवर हिज कंडक्ट, मतलब जो उसके कंडक्ट पे, उसके किए गए गलती पर वो अपना अगर माफी मांगना चाहता है तो अपन किसी को माध्यम ना बनाए। हाँ, वह व्यक्ति खुद ही जा करके फेस टू फेस, आमने सामने करके अपने कम्युनिकेशन को वो करे, अपनी माफी उनसे वो डायरेक्ट मांगे। ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं यार मुझे उनसे माफी मांगनी है, मैं उनसे बोल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी बात जा करके आप उनको बोल दीजिए कि मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ करके। लेकिन आप कभी देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति, मीडियम व्यक्ति, हो सकता है कि आपकी बातें वहां जा करके आपके फेवर में ना बोल करके आपके अगेंस्ट में बोल दिया, तो ये आपके लिए दिक्कत होगी कि हो सकता है वो अगेंस्ट आपके लिए और ज़्यादा घातक हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप खुद ही उस व्यक्ति के पास जा कर के उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे, तो आपके लिए वो कम्युनिकेशन प्रभावशाली भी होगी और तुरंत उसका आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम पहले क्या बोल रहे हैं, पहले हमको क्या है कि हमें सबसे पहले सही मीडियम को चुनाव करना है। wrong choice of medium wrong choice of medium leads to the communication barrier. Okay, now second, miscommunication। जब एन इंटरेक्शन, जब दो पार्टी के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज इन विच, जिसमें कम इंफॉर्मेशन वाज नॉट कम्युनिकेटेड एज डिसाइड, जब दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन होती है तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन जैसा चाहते थे वैसा हम नहीं दे पाते या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर पहले आता है। तो लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर क्या है, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सेंडर और रिसीवर का, तो उसके वजह से क्या पैदा होगी, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स अराइजिंग ड्यू टू, किस कारण से हो सकता है, अराइजिंग ड्यू टू हो सकता है कि वर्ड्स के कारण वो, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर सेंडर और रिसीवर की बीच हुई है तो अराइजिंग ड्यू टू द, हो सकता है अराइज किसके वजह से हुआ होगा, किस कारण उत्पन्न हुआ होगा, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, या ऐसा कोई सिंबल यूज किया हो गया आपने कम्युनिकेशन में, तो उसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। सेकंड है आपका इंटरप्शन ऑफ वर्ड। इंटरप्शन ऑफ वर्ड क्या है, इफ द रिसीवर ऑफ मैसेज does not understand the same meaning to a word as the sender has intended, then it will cause a barrier to communication। Interruption of word मतलब शब्दों में अगर बाधा आ रही है, जैसे हम किसी से जब फोन में बात करते रहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क कंजेशन के वजह से हमें सामने वाले की बात समझ में नहीं आती, हो सकता है कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, आप कुछ और चीजें समझ लो। तो इसको बोल सकते हैं कि अगर रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड समझता नहीं है जैसा कि सेंडर उनको समझाना चाहता है, तो ये क्या होगा, उसके वजह से बैरियर पैदा होगी, कॉज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद और कौन से कारण हो सकते हैं, बाईपास इंस्ट्रक्शन हो सकता है, अनप्रोसेस्ड, अनक्लियर एंड यूसेज ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय द रिसीवर कैन कॉज बैरियर टू कम्युनिकेशन। कुछ ऐसा चीज जो कभी प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ होगा,
या कोई ऐसे शब्द होंगे या ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ होगा जो कि क्लियर नहीं होगा, रिसीवर के द्वारा अगर वैसा कोई वर्ड यूज किया गया होगा जो कोई प्रोसेस नहीं हुआ होगा, तो उसके वजह से भी क्या है, आपको कम्युनिकेशन में बैरियर समझ में आएगा। मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड, वर्ड का ठीक से उच्चारण न कर पाना, ये भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट प्रोनाउंस्ड करेक्टली कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग मे गेट हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब भी है रुकना, बाधा आना, ठीक है। तो वो बाधित हो सकती है, किसे समझने में भी और सुनने में भी बाधित हो सकती है। किस लिए, कब होगा, जब हम किसी शब्दों का उच्चारण ठीक से न कर रहे हो तब होगा। तो यूज ऑफ वर्ड्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड करेक्टली, ऐसे वर्ड जिनका हम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के समय अगर आपने करेक्टली उसको नहीं बोला, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कब, सुनने में भी और सुनने में भी और समझने में भी हमें बाधित करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज इंटरप्शन ऑफ फिजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से सामने, खुद व्यक्ति जब सामने हो या किसी फिजिकल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता हो, बाधित होता हो। इंटरप्शन कब रुकेगा, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरप्शन स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सब जो बाधाएं हैं, ये जो इंटरप्शन है, बाहर की जो रुकावटें कब रुकती हैं, कब हो सकती है, जो प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंटरप्शन जो रहता है, वो जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको बाधा उत्पन्न करती है। फिजिकल बैरियर क्या होता है, टेक्स प्लेस, फिजिकल बैरियर्स takes place due to external environmental factor like noise, distance, etc. फिजिकल बैरियर में आप इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम अभी कोई क्लास ले रहे हैं, इस बीच में जैसे अभी आपको लगा कि मेरा फोन बज रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फिजिकल बैरियर, इट कम्स अंडर द नॉइस, ठीक है। हम उसको नॉइस के बारे में भी ले सकते हैं। तो नॉइस में पहला पॉइंट क्या दिया है, लाउड साउंड ऑफ मशीन्स या फैक्ट्री, टेलीफोन हिंडर्स ओरल कम्युनिकेशन। जब मैं आपसे ओरल, हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन है, इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ओरल में क्या आएगा, नॉइस में आ गया। नॉइस की वजह से हमें क्या दिक्कत होती है, जब हम कुछ चीज में बात कर रहे हैं तो लाउड मशीन्स होंगी, लाउड साउंड ऑफ मशीन, जैसे मशीनें जिनकी आवाज बहुत ज्यादा होगी। फैक्ट्री हो सकता है जिसमें से बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं। टेलीफोन्स हो सकते हैं जिसमें से आप अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इस बीच में यदि अब मैसेज का टोन सुनाई दे रहा होगा या फिर आपको कोई फोन सुनाई दे रहा है, तो हम ओरल कम्युनिकेशन में आप हिंडर हो सकते हैं, बाधित हो सकती है ओरल कम्युनिकेशन में। इम्प्रॉपर टाइम ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो एड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इम्प्रॉपर टाइम मतलब सही समय पर कम्युनिकेशन ना करने के वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। सी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच दूरी है तो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आएगा। किस में बैरियर आ सकता है, लिसनिंग में भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग में भी आ सकता है, और स्पीकिंग में भी आपको इन चीजों पे कम्युनिकेशन बैरियर आपको आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट इफेक्ट देखते हैं, तो क्लासरूम में एनवायरनमेंट कैसे होता है हमारा। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है, एजुकेशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। बट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन ईदर लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन। लेकिन क्लासरूम जो है एनवायरनमेंट है, जो है मतलब जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होगा, जो क्लासरूम में जाने के बाद जो उस समय की स्थिति होती है, या तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे जाएगा या फिर मिस कम्युनिकेशन पे भी हो सकता है। वर्बलिज्म, एंग्जाइटी, ज़्यादा जानने की इच्छा रखना, लैंग्वेज, डे ड्रीमिंग, डिसइंटरेस्ट, अगर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप कल उसमें कम्युनिकेशन में बाधा आ गई। फिजिकल डिस्कम्फर्ट कैन बी द एलिमेंट्स विच कैन अफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ज़्यादा कोई अगर क्लासरूम के एनवायरनमेंट का मतलब, ये कहने का मतलब है कि अगर कोई क्लास में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात कर रहा है पढ़ाते समय, तो उस टीचर का ध्यान उससे हट करके उस व्यक्ति को डांटने में लग जाएगा या उसको समझाने में लगेगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी अगर मेरा कुछ लैंग्वेज, मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ और सामने वाले बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, देन ऑल्सो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इट इज़ द फर्स्ट रूल
कि कम्युनिकेशन में यदि एक व्यक्ति दूसरे को व्यक्ति को अगर बात कर रहा है, अगर वही चीज जो सेंडर उसको भेजना चाह रहा है उसी रूप में अगर रिसीवर उसको समझ रहा है, तो ही हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ। तो उस रूल के हिसाब से भी लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम आती है तो मेजर इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। डे ड्रीमिंग, कोई बैठ के दिन में सपने देख रहा है तो भी हो सकता है। कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी अगर वहां बैठ रहा है तो भी कम्युनिकेशन बैरियर है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, वहां पर रह करके अगर वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो भी एक एलिमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन, कमिंग टू द नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या है? आज के डेट में मॉडर्न टूल है, आधुनिक टूल है। किसको? मेक लिसनिंग ईजियर, बहुत ज़्यादा लिसनिंग को ईजियर बनाने में आज के डेट में टीचर्स का जो यूज़ है वो बहुत मॉडर्न टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग होता है, मोर अंडरस्टैंडेबल होता है। इंटरेक्टिव बोर्ड पे आप जैसे आप करेंगे तो यू कैन सी एवरीथिंग, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक इफेक्टिव होता है, एटसेट्रा। इट हैज़ मोर पॉजिटिव फैक्टर्स दैन नेगेटिव, पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा होता है नेगेटिव के बजाय टीचिंग एड्स में। द विजुअल एड्स हेल्प टू लर्न मोर इफेक्टिवली। विजुअल एड्स मतलब जिन चीज़ों को हम देख करके पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली प्रभाव करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ों को हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत समय तक आपके दिमाग पे रहता है। पावर कट होने से या प्रेजेंटेशन देते समय अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका बाधा आ रही है या रुकावट पैदा हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच। इससे संबंधित क्वेश्चंस में आपको पहले ही दिया हुआ है कि व्हाट इसमें क्वेश्चंस में आपको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या आ सकता है। इसके पहले जो मैंने बताया था, एक सेकंड, इसके पहले हमने जो बताया था, सॉरी, इसमें क्वेश्चंस में आपको कैसे आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिया है, डिफाइन कम्युनिकेशन। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कम्युनिकेशन को आप डिफाइन कीजिए। इट मे कम्स अंडर द टू नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन पे भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, 4 नंबर का हो सकता है। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस कम्युनिकेशन करने के उद्देश्य क्या क्या है हमारे। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, किन किन प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। तो मीन्स यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो मतलब आपको इसमें पूरे पॉइंट लिखने होंगे। पहला पॉइंट जैसे आपको इसमें दिया हुआ है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, दूसरा दिया हुआ आपको मिस कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है इंटरप्शन और फिजिकल बैरियर, नॉइस, इम्प्रॉपर टाइम, डिस्टेंस, क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचिंग एड। इतना आपको 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, देन ओनली यू विल गेट द 5 मार्क्स। हो सकता है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए, तो आपको इसका प्रिपरेशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें डिफाइन कम्युनिकेशन है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है। What are the factors affecting AFFECTING? What are the factors affecting communication? तो ये क्वेश्चंस आप लोग को रहेगा सबको। ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड डिफाइन कम्युनिकेशन, दीज आर अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन या डिफाइन कम्युनिकेशन, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अवर कम्युनिकेशन चैप्टर पार्ट। ओके, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। If you have any questions in regard of this, you may directly ask me a question.